see this particular presentation? Visible है सबको? Yes, sir. अच्छा चलें जी, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Uh, we would be discussing about the long case. Now, long case is the one of the important components of the examination. You have 4 components in the examination. One is the long case, other are the talks, then short cases and slides. Talks may further it is divided that you have clinical slides and histopathology slides and talk station. Long case remains the most important component of the practical examination. And this is the part where we see that lots of resident or lots of trainees or these residents appear in the examination, they have a failure. The reason behind the failure is usually that we do not ask you the rocket science of the long case or something. Mostly आपका जो failure होता है, in most of the cases it is the trainee or the examinee or the candidate who is appearing, he fails himself. Now if we come to the format of the long case, so you have initial 30 minutes for the candidates and another 30 minutes for the examiners, 2 examiners. Now it's very important that in this first 30 minutes, you are very well versed with going about the long case. आपने उसको करना कैसा है? जो majority of the failures होते हैं, आपने जो है ना बहुत सारे जो है ना candidates को देखते हैं, जो अब जो examiners होते हैं वो ये decide कर लेते हैं कि आपका pass fail. जब आप पहले 30 minutes में case कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका वो decision ले चुके होते हैं. Next 30 minutes it is usually because जो है ना वो गुजारने होते हैं, तो उस particular part में आपने अपनी findings बतानी होती हैं, सारा कुछ बताना होता है, वो आप बता लेते हैं, लेकिन पीछे से आप जो है ना केस को complete नहीं कर सकते हैं, या आपकी history बहुत लंबी होती है जिसकी वजह से you are not able to complete your physical examination, or your physical examination you are not well versed with the physical examination because let's be very honest to them, जो candidates during training होते हैं वो they do not take history as is required in the examination, and most of them they prepare for the long case in the last few days, जहाँ पे फिर आपकी skills उस तरह नहीं develop होती हैं जिस तरह आप जो है ना जो होनी चाहिए. So that is very much evident when you people are doing your long case. Now we come to this particular part that you have 30 minutes for the candidate and 30 minutes for the examiner. The marks distribution is that you have history and interviewing skills. जब आप history and interviewing scale कर रहे होते हैं वो 20 marks हैं. Then you present those particular findings. Now it is very important, अगर आपने history और interviewing skills में वो particular points नहीं pick किए हैं, तो these build upon one another. मतलब आपने जो history और interviewing skills में चीजें ली हैं, note की हैं, say we take के जो है ना SLE का case है, आपने जो है ना उसमें जो history में उसका पूछा है like oral ulceration, Raynaud's, photosensitivity, joint pains, muscular, all these things you have particular, आपने ये सवाल पूछे हैं तो आप आगे presentation में बता सकेंगे. अगर आपने वो particular सवाल नहीं पूछे हैं तो आपकी presentation, we usually see with presentation the candidates are okay, लेकिन वो सवाल आपने नहीं पूछे होते हैं तो आपके ये number यहाँ पे कट जाते हैं. So that is the main reason behind the failures. Now the first 30 minutes you start with introduction, that is you are very clear कि आप अपना नाम बताते हैं, उससे जो है ना consent लेते हैं, उसका पूछते हैं कि age क्या है, what is his profession, where he comes from, and all these things. This is the very initial part in the first 30 minutes. Then you go for the history taking and then examination, cutaneous examination and the systemic examination. Now, one particular important point which I always highlight to my candidate is that you should be very well versed in these particular components. आप अपना case 25 minutes में complete कर चुके हैं. You should be able to complete your history taking, cutaneous examination and systemic examination within 25 minutes. In next 5 minutes, you compose yourself, you write your findings, and then कि आपने इसको present कैसे करना है.
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बेसिकली 30 मिनट्स नहीं है, यू हैव 25 minutes to complete your examination, history taking and everything, and then you all these you write them, you compose yourself, and then there is a bell, which the bell rings, and then you present your findings. So in first 30 minutes, the time distribution is that your history taking, ये हम बड़ा particularly देखते हैं कि residents या trainees they exceed 79 minutes. आपके पास घड़ी होनी चाहिए, history taking should not exceed 7 minutes. ये अपने पास कहीं लिख लें. जो बहुत से फेलियर्स या जहां पे हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट्स, दे आर लेफ्ट विद से 10-12 मिनट उनके पास रह जाते हैं, जिसमें उन्होंने सारी जनरल, फिजिकल, कुटेनियस, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं, जहां पे फिर एक या दो सिस्टम्स उनसे रह जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you complete your history taking session within 7 minutes. I hold on here. अगर आपकी कोई particular सवाल हैं तो I would answer, क्योंकि then I would proceed further. So if you have any questions, you are now requested to ask me, because इस तरह मैं चलता जाऊंगा तो फिर बात आपकी जो है ना डिस्कशन नहीं हो सकी. So any particular questions, you are free to ask me at this particular moment. जी कोई क्वेश्चंस हैं आपके? जी सर, मतलब आपने जैसे कहा कि एसएलई के पेशेंट्स में, तो सर क्या उसकी जो कुटेनियस फाइंडिंग्स होती हैं उनके भी क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री में पूछने होंगे, कि जैसे परप्यूरा या अर्टिकेरिया और टेलेंजेक्टेसिया, सबके बारे में पूछना होगा हिस्ट्री में? जो तो डेफिनेटली आपको, तो वो तो मैंने आपको एक बतौर एग्जांपल्स जो है ना बताए हैं. डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट योर हिस्ट्री टेकिंग, आप जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आती है तो पहला क्वेश्चन ही आपका यही होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक कितना अरसा पहले थे. से हम लेते हैं सोराइसिस का पेशेंट है या कुछ है, तो वो कहेगा कि जी 2 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक था. तो डेफिनेटली कोटेनियस तो आपने पूछना है. तो देन यू स्टार्ट कि आपको पहला लीजन से, मैं आपको सोराइसिस का कह रहा हूं, you can ask, you can take an example of any dermatosis. The first question is कि आप बिल्कुल ठीक कब थे? पेशेंट कहते हैं जी 2 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक था. फिर आपको बीमारी कहां से शुरू हुई? वो कहते हैं कि जी मुझे इससे, वो कहता है मुझे स्कैल्प से शुरू हुई, या कहता है कि मुझे जो है ना एक्सटेंसर्स पे कोई लीजन आए. तो देन यू पर्टिकुलरली आस्क कि वो पहला जो लीजन निकला था वो कैसा था? वो कहता है कि कोई स्केली पेप्यूल था. जी अच्छा, वो जो पहले आपका लीजन निकला था वो उस वक्त आपके जिस्म पे कहीं पे उस तरह का कोई निशान है या कोई लीजन है या जो है ना वो है, तो वो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क फॉर टेलेंजेक्टेसियाज एंड ऑल दीज जो उसके साथ रेलेवेंट है. कोटेनियस तो आपने हिस्ट्री में हर सूरत पूछना है. यू हैव टू स्टार्ट विद कोटेनियस, हाउ दैट थिंग इवॉल्व, पहले लीजन कहां पे निकला था. सोराइसिस में आपको वो पेप्यूल्स का बताएगा, एक्सटेंसर सरफेसेस पे बताएगा. पेम्फिगस का पेशेंट है वो आपको कहेगा कि मुझे ओरल अल्सरेशंस थी. दीज आर, एंड देन कितना अरसा रही पहले. ओरल अल्सर्स का आपको मैं बताऊंगा. आपने यू हैव टू, मतलब वंस यू हैव, अगर आपने ओरल अल्सर्स का पूछ लिया तो देन यू फर्दर, ये नहीं है कि आपने उसमें कि ओरल अल्सर्स हो गए, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये ओरल अल्सर्स हर्पेटिक थे, ठीक हुए, नहीं ठीक हुए, ठीक होके दोबारा होते थे, ये कोई बेशे के थे, या जो है ना. Sir, by the history, do you mean only history of present illness, or we should complete it till the all of the components of history? Definitely, हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो सारे कंपोनेंट्स जो आपके हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल, डेफिनेटली वो सारे जो है ना अपने 7 to 8 मिनट्स में लेते हैं. ठीक है जी. ये इसका टेक्निक ये भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि यू आर एक्सीडिंग 7 मिनट्स, तो पेशेंट को ब्लड कफ, ब्लड प्रेशर कफ वगैरह ये लगा के 1, 2, 3 सवाल आप बीच में उस वक्त पूछ लें. लेकिन ये भी नहीं करना है कि आपको जो है ना आप अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उस वक्त आप जाके उससे पूछ लें कि जी आपके खानदान में तो किसी को जो है ना ये एस्थमा वगैरह नहीं है. आपका वो पैच आपने जो है ना कंटिन्यूटी में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एंड ऑल, फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल दीज, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, सो आई मीन history of present illness, past history, family history, occupational history, socio-economic history, DLQI, all these they come under the history taking, right? Thank you, sir. Any other question? Should I proceed or आपने कुछ और पूछना है?
सर एक और क्वेश्चन पूछना है सर, अगर जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो सर अगर साथ साथ थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट करते जाएं तो सर वो इम्प्रेशन एग्जामिनर पे कैसा रहता है, या सर सिर्फ सुनते रहें और लिखें ना? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इम्प्रेशन वाली और जो ये बात होती है ना, अगर आप नोट कर रहे हैं अपने साथ, आपको जो है ना कागज इसीलिए दिए गए होते हैं कि जो है ना वो इम्प्रेशन आपका जो है ना जी तब खराब होता है, जो है ना ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये कोई भी नहीं माइंड करता है। इम्प्रेशन आपका तब खराब होता है, यू आर हैप, आपने जो है ना क्या कहते हैं उठा बैठा रहे हैं, हिस्ट्री में जो है ना इररेलेवेंट पूछ रहे हैं, या जो है ना आपने कोई सारा फैमिली हिस्ट्री तक आपने सारे जो है ना एवोल्यूशन पूछ लिए है, वो एक सिस्टमिक इंक्वायरी कर ली है और जो है ना जा रहे हैं और फिर उससे पूछ लें कि जी आपको और कहीं तो ये लीजन निकले थे। सो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। नोट करने का जो है ना कोई भी नहीं माइंड करते, यू आर वेरी फ्री, यू कैन नोट देम डाउन, राइट? शुड आई Yes, प्रोसीड के sir. कोई और सवाल है आपको? Yes, एनी sir. Yes, sir. जी। Proceed. प्रोसीड जी। Yes, sir. Proceed. सो अभी तक जो हमारी जो डिस्कशन हुई, very important, you should not exceed more than 7 to 8 minutes while history taking, and by history taking I mean everything जो आप इंटरव्यूइंग आप कर रहे होते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, नाम ब्ला ब्ला ऑक्यूपेशन एंड देन लीजन्स कम लिख लेते हैं, सारा फैमिली हिस्ट्री, ये सारा कुछ आपका 7 मिनट्स में हो जाए, राइट? की अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो पेशेंट को ब्लड कफ या जो है ना थर्मोमीटर लगा के वहां पे 2 3 4 सवाल पूछ लें, लेकिन टाइम ना जाया करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अगेन दी सेम थिंग जो आपने पूछा था कि हिस्ट्री टेकिंग की जब हम बात करते हैं तो विद इन 7 मिनट्स यू हैव टू इंट्रोडक्शन, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली, ये सारी चीजें आपकी जो है ना ये डेफिनेटली दे इनकम्पस द हिस्ट्री टेकिंग। ये जो है ना सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपने उनमें पूछने हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी उनकी आती है, ट्रैवल हिस्ट्री आती है, पर्सनल एडिक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री, दीज ऑल दे कम अंडर द history taking. These are the certain questions which I think you are very well versed with it, कि जो है ना आपने इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री में जो है ना ये चीजें अपना उनका पूछनी है। नाउ चीफ जो है ना जो चीफ कंप्लेंट्स हैं उसमें आपने जो है ना आप चीफ कंप्लेंट्स में डालने से पहले, या जो है ना आप के पास पेशेंट है, सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है ना पेम्फेगस की पेशेंट के देता हूँ, उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो जो है ना ये बड़ा कॉमनली जो है ना रेजिडेंट्स जो है ना पूछते हैं या जो ट्रेनीज कि जी हम उसको कितना करें। जो इनिशियल आप लुक देते हो वहां पे वो आप एग्जामिनेशन नहीं करते हो, आप एक कर्सरी लुक दे देते हो। पेम्फेगस का पेशेंट है जिसको से ओरल अल्सरेशंस हैं और वो कहता है कि मुझे जिस्म पे जो है ना से लीजन्स है, आप कहते हैं कि जी छाले या अल्सर्स बनी हुए हैं या जो है ना कोई निशान है या कुछ है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। जरूरी नहीं है कि उसको जो है ना पूरा का पूरा देखें और किधर है, जस्ट उसका एक्सटेंड देखने के लिए और नंबर ऑफ लीजन्स कितने हैं, तो वो यू कैन आस्क वेरी कर्सरी। ये नहीं है कि आप वहां पे एग्जामिनेशन शुरू कर दें, ये नहीं है, जस्ट अ कर्सरी लुक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लोग बड़ा कहते हैं कि जी हमने एग्जामिन करना है, किस तरह करते हैं, वो माइंड करते हैं, ये करते हैं, कोई माइंड नहीं करता है जी आपको। अगर आपके ओरल आए, वो कहते हैं ओरल अल्सर्स है और जिस्म पे निशान है जो आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो यू कैन आस्क देम कि कहाँ कहाँ पे आप मुझे दिखा दें। अच्छा एक दो आपको दिखा देता है कि जी ये है, इसके अलावा आपके और किधर किधर है, आप सिर्फ इतना पूछ लें, वो बताता है कि जी बैक पे हैं, एक्सटेंड पे है, जो है ना आर्म और एक्सटेंसर सरफेसेस पे हैं, कितने हैं, 10-12 लीजन्स हैं, सही है। दिस इज ऑल, देन यू गो अबेट, यू स्टार्ट विद द हिस्ट्री। पहला सवाल आपका हमेशा ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक कब थे, सही है। उसके बाद पहला लीजन क्या निकला था, इट वाज अ पेप्यूल, इट वाज अ ब्लिस्टर, इट वाज अ वेसिकल, कितना अरसा रहा, वो रेलेवेंट। इस चीज को जब आप एक लीजन को लेते हैं तो उसकी सारी एवोल्यूशन और सारा कुछ पूछ पाछ के किस तरह ठीक हुआ था, कितने अरसे में इवॉल्व हुआ था, उसको उस कहानी को खत्म करके जो है ना आपने आगे चलना है। ये नहीं है कि उसको जो है ना आपने पूछ लिया कि बस ओरल अल्सर्स हैं और आगे आपने नहीं पूछा है कि जी वो चाहे वहां पे डिफरेंशिएट करना है कि ये ओरल अल्सर्स ठीक होते थे, पेम्फेगस का होगा तो नहीं ठीक होगा, पेशे के होंगे तो जो है ना वो आपको बताएगा कि जी आ रहे थे और जा रहे थे, एंड देन दैट्स ऑल थिंग्स
This is you need to differentiate. वो differentiation करके ये सारा कुछ करके उस particular lesion को evolution सारा कुछ करके जो है ना, जब आप history ले रहे हो, this is very important कि आप जो examiner है उसके mind में कोई ना कोई picture आप बना रहे हैं। आपने कोई ये कोई किसी का माइक ऑन है, प्लीज ये ऑफ कर दें। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कोई सवाल मुझसे पूछने हैं तो पूछ लें। स्टॉप हियर। सर ये अबाउट हाउ मेनी किड्स द पेशेंट हैव, ये इंट्रोडक्शन में ही पूछना है उस पेशेंट की, या हम फैमिली हिस्ट्री में इसको कंटिन्यू करेंगे? हेलो जी, आपने क्या प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन जी। सर मैं पूछ रही हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में पेशेंट से पूछते हैं कि दे आर मैरिड और अनमैरिड, और वहीं पे पूछना है बच्चे कितने हैं, या ये बाद में फैमिली हिस्ट्री में पूछना है? प्लीज जवाब ना बेहतर है कि ना, मेरा ख्याल का बाकी डिजीज वो जो उसका वो है क्या कहते हैं अपना कि बच्चे कितने हैं, ये सारा कुछ इन दी फैमिली हिस्ट्री वो वहां पे पूछे। मैरिटल का जो है ना जरा पूछ लें कि जो है ना अगर वो शुरू में एजुकेट उनका पूछ लें। एक तो ये होगी ना कि जिससे वो अब प्रेजेंट, और जब हम उनसे ये पूछते हैं सवाल कि कितना अरसा पहले आप बिल्कुल ठीक थे, तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 2 years, तो देन दे से कि फीवर भी था, जॉइंट पेन भी थी, और अभी अल्सरेशन के साथ फॉर एग्जांपल आ गए, या रेनॉट्स के साथ इस दफा प्रेजेंट किया है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम चीफ कंप्लेंट्स वी कैन हैव, बिकॉज समटाइम इट्स बिकम सो लॉन्ग, द लिस्ट बिकम्स वेरी लॉन्ग। देखिए वो उससे पर्टिकुलरली पूछी, वो तो अगर आप उससे पूछते जाएंगे तो आप उससे ये पूछ ले, मैक्सिमम 2 3 4 जो है ना पेशेंट बताता है, इतने ज्यादा लिस्ट तो नहीं बताते हैं। आपके पास आया है सपोज एसएलई का या जो है ना सिस्टमिक, वो आपको ये कि स्किन की टाइटनेस है और जो है ना या आपको जॉइंट पेन ही 2 3 बताएगा, और क्या बताएगा? सही है। जैसे एक्सक्यूज मी सर, जैसे पेम्फिगस वगैरह का पेशेंट है, 10 years से या 12 years से हिस्ट्री है, अब करंटली किसी कॉम्प्लिकेशन से आया, बीच रिमिशन रिलैप्सेस आती रही हैं, तो जब हम एचओपीआई स्टार्ट करते हैं तो हम वो 10 years बैक से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम कहेंगे कि इतने अब फॉर एग्जांपल कुछ डेज की हिस्ट्री है, तो फिर हम बाद में कहेंगे कि इतने साल पहले भी ये चीजें हुई और रिमिशन रिलैप्सेस का में आपके पास कॉम्प्लिकेशन किस क्या आ सकता है पेम्फिगस वाला, सर एक्जिमा हर्पेटिकम वगैरह अगर हो करंटली उसके ऊपर आ गई, या वैसे अब न्यू ब्लिस्टर्स फॉर एग्जांपल, या अगर कोई न्यू बन गए हैं अब बीच में रिमिशन नहीं। देखिए ना, अगर आप एक्जिमा हर्पेटिकम का नहीं पूछती हैं तो देन हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि इसको है क्या? आप एक्जिमा हर्पेटिकम को तो नहीं, फॉर एग्जांपल बीच में रिमिशंस, अगर रिमिशन में था पेशेंट तो अब उसको 10 days से न्यू हिस्ट्री है ब्लिस्टर्स की, तो अब हमने 10 days से स्टार्ट करेंगे, या फिर वो जो इनिशियल हिस्ट्री चल रही है, जो इनिशियल ब्लिस्टर बना था 10 years बैक, ये कंफ्यूजन रहती है जरा। डेफिनेटली जो इनिशियल बना था उधर से आप चलाएंगी ना उसको, सारी हिस्ट्री उससे पूछेंगी। अच्छा, ठीक है। ना बीच में रिमिशन, अगर आप इनिशियल का नहीं पूछेंगे देन हाउ वुड यू कम टू नो कि उसने डिजीज के लिए क्या कुछ लिया है, कितनी रिमिशंस हुई हैं, कितना स्टीरॉयड का डोज रहती रही है, और दीस, तो वो तो फिर आप नहीं सर्टेन कर सकेंगी। डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन देनी है हिस्ट्री की, डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसमें भी जी बताएं क्या? हाँ जी सर, मैं कह रही जब एचओपीआई हमने डिस्क्राइब करनी है एग्जामिनर को, तो उसमें भी 10 साल पहले वाली से स्टार्ट करना है, या फिर definitely the patient who was in usual state of health 10 years back, then he started developing oral ulceration which were not healing with all this, and वो एक वो डेफिनेटली बताना पड़ेगा। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगी तो ओरल अल्सर्स बन जाएंगे, वो जो है ना आप नहीं बताएंगी क्या हुआ था, वो आपने सपोज आप लेट्स सपोज आपने जो है ना कहा कि 10 दिन पहले जो है ना उसको जो है ना वो हुआ एक्जेक्टली हर्पेटिकम, तो जो उसकी पहली चीजें वो कर गई वो तो आपको पूछना पड़ेगी ना, स्टार्ट क्या हुआ था, ये एक्जिमा हर्पेटिकम, एटोपिक डर्मेटाइटिस का, पेम्फिगस फोलेशियस का, किस चीज का, ये तो आपको फिर सर्टेन करना होगा ना, राइट? सो I proceed. Then the starting, ये देखें very first complaint आपको ये मैंने बताया हुआ है, you always start with the first, उसका साइट क्या थी, टाइप ऑफ लीजन कितना था, नंबर क्या था, एवोल्यूशन, हीलिंग, नॉट हीलिंग, स्कार, पिगमेंटेशन एसोसिएटेड,
During history, if patient adds on some complaint related or not related to chief complaint, do not ignore, ask relative question. अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि दिस इज योर फाइनल एग्जामिनेशन और आप जो है ना टाइम बाउंड भी होते हैं, क्योंकि वो होता है नॉर्मली जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, एग्जामिनर्स उनको पहले इंटरव्यू कर चुके होते हैं, ताकि वो, अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपको बड़ा डी ट्रैक कर रहा है या कुछ कर रहा है, एक आध मतलब यू कैन से आप टाइम अपना देखें, कोई 30-40 सेकंड्स तक अगर आपको बता रहा है कि बड़ा डी ट्रैक बात वक्त पेशेंट करते हैं, वो बड़ी जो है ना वो, तो देन यू कैन थोड़ी देर सुन के अपना रेलेवेंट सवाल, उसको आपको 30-40 सेकंड में देखते हैं कि जी आपको कोई रेलेवेंट चीज नहीं बता रहा है बल्कि आपको डिट्रैक्ट कर रहा है, तो देन यू नीड टू आस्क देम अ रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। उनको दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग में हम देखते हैं, लोग जो है ना बड़ा क्या कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक रेनॉस का मैं पूछता हूँ, अगर आप उसको पूछते हैं कि जी आप ये सवाल, नाउ दिस इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन, कि जी सर्दियों में आपके हाथ रंगत बदलते हैं या जो है ना आपके हाथ जो है ना नीले या सुर्ख या पीले होते हैं, सही है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस लीडिंग क्वेश्चन, यू शुड बी आस्किंग कि सर्दियों में आपके हाथ कैसे होते हैं, राइट जी। ये यू आर क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट? Sir, can you please repeat this Reynolds thing? देखें जी, रेनॉज में देखें, बजाय इसके कि आप पेशेंट को कहें कि सर्दियों में आपके हाथ, जो बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं कि आप सर्दियों में आपके हाथ नीले या पीले तो नहीं होते हैं, सही है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस लीडिंग क्वेश्चन, यू शुड आस्क अ पेशेंट सर्दियों में जब आपके हाथ कैसे होते हैं, ठीक है जी। या तो आपको बता देगा कि जी सर्दियों में या ठंडे पानी में डालने से मेरे हाथ जो है ना नीले हो जाते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, बास पेशेंट बड़ा पर्टिकुलर आपको बताएंगे। अगर आपको वो नहीं बताता है तो देन यू कैन, आप पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के, अगर आपको उसका वो जवाब नहीं देता है तो देन यू के जी आप सर्दियों में जब पानी में हाथ डालते हैं तो कोई रंगत तो नहीं बदलती है, रादर देन आस्किंग कि जी आप जब धूप में बैठते हैं तो आपको जो है ना चेहरे पे कोई जो है ना प्रॉब्लम होता है या जो है ना कोई जलन होती है, तो आप ये पूछें कि जी आप जब सर्दियों में या धूप में जब आप बैठते हैं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती है। दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन, रादर देन आस्किंग कि आप धूप में बैठते हैं तो आपको चेहरे पे जलन। सो डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, लेट द पेशेंट टेल यू, राइट जी। अच्छा, then sequence wise detail of each complaint, at least 2 to 3 questions to exclude each differential। आपने differential ये भी नहीं है, एक जो है ना साइकोलॉजिकल या मेडिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस आपने जो है ना बहुत सारे देखा भी होता है कि जो है ना वो क्या कहते हैं, एक वर्कशॉप भी होती है जिसमें वो बता देते हैं, कार्ड्स पे बताते हैं कि जी एक ग्रुप को बताते हैं कि ये जो है ना ये तस्वीर देखें ये खातून की है, दूसरे ग्रुप को बताते हैं कि ये तस्वीर देखें जी ये मर्द की है। तो जब वो मोड़ के बताते हैं तो जो है ना जिन्होंने देखी होती है पहली तस्वीर मर्द की, उनका दिमाग फिक्स्ड हुआ होता है, वो कहते हैं कि जी ये मर्द की तस्वीर है। बहुत सारे केसेस आपने पहले से देखे होते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है कि जी अंदर सोराइसिस का मरीज है, देन यू डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट सोराइसिस, सही है। आपने डिफरेंशियल जरूर पूछना है, सही है। सोराइसिफॉर्म लीजन्स के हैं, सार्कॉइड एंड ऑल दीज थिंग्स आपने उनसे जरूर पूछना है। ये नहीं है कि सिर्फ सोराइसिस की हिस्ट्री ले ली बाकी कुछ पूछे ही नहीं है। दिस इज अ बिगेस्ट डिजास्टर व्हिच हैपेंस विद द स्टूडेंट्स और पेशेंट। बाज वक्त जो है ना वी हैव सीन कि जो है ना पेशेंट किसी और डिजीज का था, बस बाद से उनको बता दिया गया, बस वो उसी पे फिक्स्ड रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लीज जरा अपने माइंड को ओपन रखना है एंड यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। मेडिकेशन हिस्ट्री जो है ना आपने जरूर पूछनी है, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपने ड्यूएल किया ही है कि इस बीमारी से आपकी जो लाइफ है वो कितनी अफेक्टेड हुई है, दवाजी जिंदगी जहां पे हम काम करते हैं, दोस्तों में बैठने को दिल करता है, दिस ऑल थिंग दे नीड टू be these need to be included in your history, and then the side effects of the medicines he is taking, you have to ask them. Then these travel history, personal, occupational, ये जो है ना आपने जो है ना जरूर उनसे पूछने हैं। ये जो आपने अगेन जो
जो इम्पोर्टेंट टिप्स है उसमें ने आपकी जो सवाल हो ना, इस लेवल पे आप जो है ना बगैर किसी वजह के जो है ना सवाल ना पूछ रहे हो। आपके सवाल वो हो जो आपको जो है ना डिफरेंशियल्स की तरफ लेके जाए, एंड देन यू नैरो डाउन। आपने एक बड़ी ब्रॉड जो है ना क्या स्क्रीन से स्टार्ट लिया जिसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना चीजें हैं, एंड देन यू नैरो इट डाउन टू यू 2 or 3 डिफरेंशियल जो आपके एंड दी डिफरेंशियल दी डायग्नोसिस जिस पे आप आ सकें। एंड देन ऑल्सो जो है ना वो बाज वक्त जो है ना आपके पास, क्योंकि आप टाइम बाउंड होते हैं, तो जो है ना आपको ये मैंने पहले भी बताया कि गिव चांस टू द पेशेंट टू टॉक, लेकिन इतना भी चांस नहीं देना है कि आप टाइम जो है ना आपका एक्सीड हो जाए और जो है ना आप अपना जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो ना पूछ सकें। सो आफ्टर 7 minutes जो हमने इतनी सारी बातें की हैं, नाउ रिमेंबर वन थिंग, हिस्ट्री टेकिंग इज अ स्किल। आप जो है ना वहां पे जो एग्जामिनर्स बैठे होते हैं वो आपको जो है ना 2-3 मैं आपको जो है ना बताता हूँ इसकी एग्जांपल। ये हिस्ट्री टेकिंग इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। अगर आपने पहले जो है ना यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो जो है ना आप जब बाइसाइकिल एग्जाम या किसी के सामने चलाएंगे तो पता लग जाएगा। इसकी फर्दर एग्जांपल जो है ना कार ड्राइविंग की है। आप पहले दिन जब कार में बैठते थे तो आपको जो है ना लगता था आप जो है ना वो की घुमाते हैं जिस तरह फर्स्ट गियर लगाते हैं, बट वंस यू आर वेरी वर्सर, यू आर स्किलफुल, तो ये सारी चीजें आप जो है ना सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, आप सोच के नहीं कर रहे होते हैं। सो सेम गोज विद द हिस्ट्री टेकिंग, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद। ये 3 साल में आपकी सफिशिएंट ट्रेनिंग और जो है ना आपकी एक्सरसाइज हो गई हो कि दैट शुड बी यू आर डूइंग द थिंग्स सबकॉन्शियसली। आफ्टर 7 minutes ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, इफ यू हैव सीन दैट आपकी चीजें नहीं मुकम्मल हो रही हैं, तो इट इज बेटर कि जो है ना आप 7 minutes के बाद उसको कफ और पल्स देखना उसका शुरू कर दें, बीपी देख लें। उस दरमियान जो है ना 2-3 जो है ना आप उनसे सवाल जो आपके रहते हैं वो पूछ लें। लेकिन ये किस्सा इतना भी ना हो कि जो है ना आप यहाँ पे जो है ना उसको चेस्ट एक्सकल्टेट कर रहे हैं और साथ उसे पूछें कि जी आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं है। ऑल दिस ट्राई टू फिनिश इट ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। नाउ आपने जो है ना जब अपनी हिस्ट्री टेकिंग मुकम्मल कर ली और आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन ये स्किल है, ये स्किल आपने जो है ना मास्टर ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग करनी है। आखिरी दिनों में आप कर तो लेते हो लेकिन वो बड़ी पैची होती है जो फिर आपके जिस वक्त आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, एंड देन यू वेरी इट। अगर पेम्फिगस का पेशेंट है तो डेफिनेटली जब आप उसको लिटा के ब्लड प्रेशर एंड ऑल हिज पल्स एंड एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो देयर इज नो नीड कि आप जो है ना उसका जो है ना वो सेंसरी जो डर्माटोम्स है उनको चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट इफ देयर इज अ पेशेंट ऑफ लेप्रेसी यू आर एग्जामिनिंग, तो डेफिनेटली आप जब बिल्कुल स्टार्ट से यू आर गोना एग्जामिन हिज ब्लड प्रेशर एंड उसकी जो पल्स वगैरह देख रहे हो तो उसके साथ साथ आप उसके डर्माटोम्स भी देखना शुरू कर दो ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपने बड़े डिटेल में उसकी सेंसरी एग्जामिनेशन करनी होती है, सारे डर्माटोम्स देखने होते हैं, उसकी पावर देखनी होती है। तो लेकिन पेम्फिगस में आप इस तरह नहीं करते हो। सो यू मोल्ड योर एग्जामिनेशन टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ द केस। एम आई राइट? कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, देन आई प्रोसीड। सर अगर पेशेंट बैठा हुआ होगा तब भी हम उसको मतलब लेटा करके ब्लड प्रेशर ये सब कुछ करेंगे या बैठे हुए में हम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर? बच्चे बड़ा रेलेवेंट। डेफिनेटली देखिए हिस्ट्री टेकिंग तो अगर आप कर रहे हो तो पेशेंट बैठा हुआ है, सही है ना? तो लेकिन जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो इट इज बेटर कि जो है ना आप एक एंड से स्टार्ट करो, और वो बेहतर यही होता है कि आप पेशेंट को लिटा दो, लिटा के आप उसको बीपी सेट लगाओ, आप उसको जो है ना क्या कहते हैं थर्मोमीटर लगाओ। वो एक देखिए ये 1 मिनट है ना, आपने उसको बीपी सेट का कफ भी लगा दिया, आपने उसको थर्मोमीटर भी लगा दिया। अब 1 मिनट में आप उस वक्त जो है ना उसका ब्लड प्रेशर भी ले लो, आप उसकी पल्सेस भी दोनों साइड्स पे देख लो। आपका 1 मिनट हो गया तो आप जो है ना थर्मोमीटर निकाल लो। अब यकीन करें दीज आर वेरी व्हेन यू से इट ये बड़ा इजी होते हैं, लेकिन अगर आपने स्किलफुल नहीं हो, आप टेक्निकली मतलब यू हैव नॉट डन इट, तो हम देखते हैं अक्सर कि जी ब्लड प्रेशर कफ लगा लिया, पल्सेस जो है ना ब्लड प्रेशर कफ बीपी देख लिया ना, ब्लड प्रेशर कफ हटाया, एंड दे स्टार्ट ऑफ विद जो है ना बीच में एग्जामिनेशन में पहुंचे थर्मोमीटर उसी तरह लगा हुआ है वो नहीं हटाते हैं। सो देन दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, और इस तरह के रेजिडेंट्स या ट्रेनी या कैंडिडेट्स they are not able to complete your examination, complete
तो इन दिनों में जब आपके पास टाइम है, यू आर डूइंग, तो आप अपना एक जो है ना वो बना लो कि ये रूटीन है कि पेशेंट लिटा के मैंने इसको क्या क्या करना है, मैंने उसको बैठा के क्या क्या करना है। सही है, ये नहीं है कि आप उसको उठा बैठा रहे हो, दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ये नहीं करना है। लिटा के क्या 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 देखना है आपने, बैठा के क्या देखना है और चला के क्या देखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू हैव क्या कहते हैं प्लान विद योरसेल्फ, और उसने आप उस प्लान को आपने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना एग्जीक्यूट किया हो, तो वहां पे जाके आपको आसानी होगी, राइट? Any other question? Nishta. So we proceed. So at the end of first 30 minutes, you compose yourself, sit and relax. और ये 30 minutes आपके जो है ना आपको ये compose, sit, relax, make your mind out differential, ये 30 minutes के एंड पे आपने नहीं करना है, ये आपने 25 minutes के एंड पे करना है। उस 5 मिनट में आप बैठ जाएं, आप अपना दिमाग जो आपने बोलना है, जो उसको कोई लाइन आपने नोट्स लेने हैं या किस तरह आपने बोलना है, कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है, क्या क्या डिफरेंशियल्स होंगे जो आपने नोट किए हैं, उनको 2-3-4 मिनट में जो है ना उनको जॉट डाउन करते हैं और उस पे आपने क्या बोलना है, so that you should be able to do it in that at the end of 25 minutes, not 30 minutes. 30 minutes में तो बेल बज जाएगी और वो आपको एग्जामिनर्स कहेंगे कि जी आ जाएं, प्रेजेंट योर केस, राइट जी? So now we come to the last 30 minutes. Now remember one thing, most of the examiners have decided कि पेशेंट इस ट्रेनी के साथ या इस कैंडिडेट के पास या फेल करना है in that first 30 minutes. अगर आपकी हिस्ट्री टेकिंग यू हैव एक्सीडेड 15 मिनट्स, आपने से एग्जामिनेशन नहीं कंप्लीट की है, आपका कोई पूरा एक सिस्टम रह गया है, या आपका लेप्रेसी का पेशेंट है, आपने उसकी सेंसेशंस पूरी नहीं देखी हैं, आपने उसके कोई नर्व्स नहीं एग्जामिन किए हैं, और जो है ना आपने कोई चीजें रह गई आपसे, डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो है ना आप पास होंगे। सही है? इस 30 मिनट्स में 2 एग्जामिनर्स होते हैं नॉर्मली। एक एग्जामिनर आपको कहता है कि आप अपनी जो है ना जो फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट करें, उन फाइंडिंग्स को आप जो है ना जो प्रेजेंट करते हैं वो आपसे उस फाइंडिंग्स के बेसिस पे पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स के बेस पे व्हाट आर योर 3 डिफरेंशियल्स पूछ लेते हैं, और व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और देन यू शुड गिव देम वेरी लॉजिकल। और इसी क्वेश्चन, इसी पेशेंट में अगर आप सपोज आपका पेशेंट है और आप कहते हैं कि जी ये वो आप जो है ना कहते हैं कि जी मेरा जो डिफरेंशियल है सोराइसिस है, पीआरपी है, ब्ला ब्ला कोई एक थायोसिस आप बोलते हैं, तो ये ना हो कि आप कोई एक डिफरेंशियल बता रहे हैं और उससे रेलेवेंट आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा हुआ है, तो दैट वुड लीड यू टू नोवेयर, एंड देन दे वुड आस्क यू कि व्हाट आर द रेलेवेंट क्वेश्चंस और व्हाट आर द रेलेवेंट cues in your history taking which point towards the PRP. वो अपने पास एग्जामिनर्स भी बैठ के नोट कर रहे होते हैं कि जो है ना वो क्या आपने पूछा हुआ है कि नहीं पूछा। सही है? उस केस को वो बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं कि जी इसमें ये चीजें होनी चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना जो आपका जो नॉलेज होता है, यू पीपल आर बबलिंग विद नॉलेज, you tell us at times things which we have not read or heard about. सही है? आपको जो है ना advances or future trends and everything you know about it, all you do not know is usually case में वो कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे ये psoriasis है। सही है? Then most of जो आपके एग्जामिनर्स होंगे वो आपसे ये पूछेगा like if I go for the, आपने कहा कि जो है ना दी डायग्नोसिस पेम्फिगस है, तो मैं आपसे पहली चीज जो पर्सनली if I am an examiner I would ask you कि आपने पेम्फिगस के पेशेंट को कितना फॉलो किया अपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सही है? 6 months में आपने उसको स्टीरॉइड्स दिए हैं तो कैसे टेपर किए हैं। सही है? और आपने कितने एक रिमिशन या रिलैप्सेस देखे हैं, रिलैप्सेस हुए हैं तो फिर क्या किया। सो जो इस 30 मिनट्स में जो आपसे जो एग्जामिनर मोस्टली जो आपको जो जज कर रहे होते हैं, दे जज योर ट्रेनिंग नॉट योर नॉलेज। रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वंस आई वाज एन एग्जामिनर इन कराची एंड कैंडिडेट टोल्ड मी कि जी मैंने क्या कहते हैं जैंक टेस्ट नहीं किया। तो मैंने पूछा कि जी क्यों नहीं किया, कि जी वो हमारे डिपार्टमेंट में जैंक नहीं था। देन आई आस्क्ड कि जी आपकी इंस्टीट्यूशन में था, कहते जी था, पैथोलॉजी लैब थी लेकिन वो दूर थी। सो दिस इज नो एक्सक्यूज फॉर FCPS टू
trainee who is appearing in examination कि मैंने जैंक नहीं किया and you expect कि वो पास हो जाएगा, उसको सारा कुछ आता था, but we decided कि जी ये पास ना हो. सही है. So most of the time आपका knowledge हम नहीं जज कर रहे होते हैं, वो बड़ा जो है ना लिमिटेड होते हैं कि जी आप रिटक्सीमैब क्या होता है, उसकी क्या जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह देते हैं, ये 2 3 4 सवाल होंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू योर केस, किसको आप कैसे करते होंगे. वंस यू हैव टोल्ड देम, देन दे वुड से कि जी आपने इसको क्या कहते हैं अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितना एक फॉलो किया है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स देते रहे हैं, उसको रिलैप्स हुए तो क्या हुआ है. सो इट इज मोर अबाउट योर ट्रेनिंग रादर देन योर नॉलेज. रिमेंबर वन थिंग. So this is how we go about it. So presentation skills definitely आपने जो है ना जो उसको आपने correct language, tone और जो है ना ये sequence जो आपने बताया है, आप जब present कर रहे होते हो तो आप जो है ना एक picture बना रहे हो कि जी आप patient जो examiner है उसके mind में जो है ना एक picture. आप कोई चीज suppose आपने कहा है कि जी ये pemphigus नहीं है बल्कि DH है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना इस तरह होता है कि जी आप पेशेंट पेम्फिगस का होता है, उसके चार्ट पे भी पेम्फिगस होता है, लेकिन हिस्ट्री में वो ऐसी चीजें बताता है which do not point to क्या कहते हैं the pemphigus, बल्कि किसी और डायग्नोसिस को वो पॉइंट कर रहे थे. इफ यू कैन जस्टिफाई those particular findings और आपको सुन लिया उन एग्जामिनर्स ने तो दे एंड देन यू आर वेरी वेल स्वेर्स कि आप अपने उस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं तो दे विल पास यू. सही है जी. सो ये बड़ा टाइम होता है कि जी वो आपने देखा होता है लेकिन जो है ना आपको पता वो कुछ और रहा होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स. ठीक है जी. पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपने जरूर बतानी है, कुटेनियस और सिस्टमिक फाइंडिंग्स सारी, एंड देन एक्सक्लूजन ऑफ योर डिजीज कि जी ये आपने बुलस पेम्फिगॉइड क्या नहीं क्यों नहीं था और उस पर्टिकुलर के मुतालिक आपने हिस्ट्री में फाइंडिंग्स अपने सवाल पूछे हो और उन सवालों को फिर आप पेशेंट उसको बताएं कि जी his lesion or his blisters were not tense, they were not associated with itching. सही है जी. ये सारे सवाल आपने पूछे हो या जो है ना आपने जो DH का उसको आपने यू रोल आउट किया कि आपको कोई लीजन या प्रूरेटिक या जो है ना कोई लीजन ऐसे तो नहीं बने थे जो आपको जो है ना कोनियों पे बने हो जिनमें खारिश हो, छोटे छोटे छाले हो. सो दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड इन दी हिस्ट्री और आप फिर उसको बता भी सकें कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रूरेटिक वेसिकुलर लीजन्स ऑन दी क्या कहते हैं एक्सटेंसर सरफेसेस ऑफ द बॉडी और द आर्म्स. सही है. सो दिस इज वन पर्टिकुलर लाइन जहां पे आपने DH को रूल आउट कर दिया एंड दैट यू शुड हैव आस्क्ड योर इन योर हिस्ट्री आल्सो. सो जो है ना correct history findings and all these they will lead to and diagnosis is correct but differentials not making sense तो वहां पे भी जो है ना आप फिर फंस जाते हो. Treatment, how will you treat this stage of disease and all these जो है ना जो relevant findings and everything they will जो है ना ये बड़ा particular ये होता है कि आप जब ट्रीटमेंट आप बता रहे होते हैं तो दे आस्क कि जी रहीम यार खान में इस पर्टिकुलर पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे. एफोर्डेबिलिटी इश्यूज को आपने जरूर देना होता है. डेफिनेटली हमारे बहुत सारे पेशेंट है सोराइटिक आर्थराइटिस के हैं, वो जो है ना क्या कहते हैं आपको बताते हैं कि जी बायोलॉजिक्स आप एक आपसे वो पूछेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है, आप बताते हैं कि जी गाइडलाइंस ये कहती हैं. वो कहेगा आपको कि जी आप इसको कैसे अपने उसमें अगर एफोर्डेबिलिटी इश्यूज है तो डेफिनेटली आप उसको बताएंगे कि जी मीथोट्रेक्सेट देंगे, सेलेजोडीन देंगे, ये देंगे. आपसे वो जरूर ये पूछेगा कि सोराइटिक आर्थराइटिस को आप अपने वार्ड में कैसे ट्रीट करते हो. तो देन यू टेल देम कि जी हमारे पेशेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो हम मीथोट्रेक्सेट एंड सेलेजोडीन एंड ऑल दीज थिंग्स वी यूज. ठीक है जी. हम बैतुल माल से कोशिश करते हैं कि जी उनको अरेंज करते हैं एंड ऑल दीज. Now again I come to this जो है ना जो मेजर फ्लॉज होते हैं, अगेन आई वुड पॉइंट आउट कि जो मेजर फ्लॉज होते हैं वो यही होते हैं कि history is too long, it exceeds 7 minutes. We have seen candidates taking history of 15 to 16 minutes and then they are left with no time for examination. Irrelevant question जो है ना पूछें जी, जो try to be very focused. Male versus female अपने exposure के लिए history लेनी है. ये नहीं है जी आप चादर डाल लें, जो पे फीमेल पेशेंट है उस पे चादर डाल लें and then you when you are about to expose तो आप
अपने एग्जामिनर से पूछ लें कि जी मैं इसका ये एग्जामिनेशन करना चाहता हूं, तो अगर आपको इजाजत दे दे तो आप यू गो हेड, इफ ही सेज नहीं ओके लीव इट, सो डू यू लीव इट। तो चादर आपके पास रेडी हो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी करें, देन दे हैव नो बेड शीट अलोंग विद देम, सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड देन यू आस्क कि जो है ना मैं ये करूं या ना करूं। ये अगेन आई हैव डिस्कस दिस कि जो है ना आपने बैठा के लिटा के पेशेंट को क्या करना है, बैठा के क्या करना है, और फिर स्टैंड करके उसको जो है ना क्या करना है। दोबारा जो है ना ये नहीं है कि एक दफा आप जो है ना लाइंग पोजीशन में आपने जो चीजें देख ली हैं उसको आपने बैठा दिया और फिर कहें कि जी अब लेट जाए। सो दिस गिव्स अ वेरी बैड impression. So be very pertinent and you do things in a logical and fashion. Then पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को हमेशा आपने रूल आउट करना है जब आपने डिफरेंशियल जो है ना आपने करना है, राइट जी। So this is all about the long case. Wish you very best of luck. Again, I would tell you कि आप अपने औजार के साथ you should be very well versed with. Try to take वही बैग लेके जाएं जिसपे आपने प्रैक्टिस की है, नई चीजें उस दिन ना लेकर जाएं, अदरवाइज नया बैग ना ले, वही बैग रखें जो आप इन दिनों में ट्रेनिंग में या जो है ना ड्यूरिंग लॉन्ग केसेस यूज कर रहे हैं, आपकी चीजें वही हो, वही जो है ना आपका टॉर्च हो, वही आपके जो है ना क्या कहते हैं वो टंग डिप्रेसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यू शुड बी वेरी वेल। आपके बैग में किस जगह पे पड़ी हैं वो बीपी सेट स्टेथो, यू शुड यू हैव यूज्ड इट, ये ना हो कि आप उस दिन नया लेकर आए वो काम ना करे। सो दीज आर ऑल थिंग्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी हैव 5 minutes फॉर दैट, देन आई वुड आंसर योर क्वेश्चंस। सर एग्जामिनेशन में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हर सिस्टम का पर्टिकुलर आप क्या ओवरव्यू चाहते हैं कि एक कैंडिडेट करे? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें आप वोकल फ्रेमेटस और वोकल फ्रेमेटस को कहते हैं कि वो भी करे कि खाली वोकल रेजोनेंस? देखें जी, जब आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, आपका सीली का पेशेंट है और जिसमें रेस्पिरेटरी चीजें हो सकती है या सिस्टमिक सीरोसिस, तो सारी की सारी चीजें करनी है, ठीक है। वन और चीज जो देखें, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन ये तो करनी है, लेकिन उसमें एक आध चीज अगर आप ऑस्कल्टेशन करते हुए जो है ना, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना आप रेलेवेंट क्वाड्रेंट्स में करने, ये नहीं है कि आप जो है ना लोअर क्या कहते हैं बेसिस से स्टार्ट लें और फिर ऊपर की तरफ जाए, उसको आप मेथोडिकली करें। एक आध चीज जिसमें आप ऑस्कल्टेशन करते हुए आपने सारा ठीक कर लिया, 1 2 3 कहना रह गया, तो आई थिंक दैट वुड नॉट, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन, परकशन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ये कि जब रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो मतलब उसकी बैक हमारी तरफ होनी चाहिए ना पेशेंट्स को, या डेफिनेटली बिल्कुल, उसको कहें कि जी मुड़ जाएं एंड देन यू एग्जामिन दी, ठीक है। आप मुड़ जाएं, आप उसको जो है ना मुड़ के जो है ना, अगर आपने उसको बैक अपनी तरफ करनी है तो बैक अपनी तरफ करके, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऊपर से स्टार्ट लें, उसके जो है ना क्या कहते हैं लिम्फ नोड्स देखें, उसके जो है ना ये सर्वाइकल देख लें, ये क्या कहते हैं उसकी स्पाइनल टेंडरनेस देख लें, एंड देन यू क्या कहते हैं वो जो सैक्रल एडिम है, ऑल दीज यू चेक जो है ना जब आप बैठते हैं तो अपने पास एक जो है ना वो बनाए कि एक चेक शीट बनाए ना कि जी मैंने उसको बैठा के उसको बैक पे क्या क्या देखना है। सो यू डू इट एग्जैक्टली, और जब आप उसकी चेस्ट जो है ना स्कल्टेट करें तो उसको कहते हैं कि जी आर्म्स क्रॉस कर ले, और ताकि जो है ना ऊपर एपिसिस से आप स्टार्ट लें और जो है ना यू कम डाउन। सर पेशेंट जब लाइंग पोजीशन में होगा तो कुटेनियस फ्रंट की तो हो जाएगी, बैक की मतलब उसको सिर्फ टर्न करा दें या फिर जब हम बैठाएंगे ना, आपने उसको टर्न क्यों कराना है? जब आपने उसको बैठाना है तो बैठा के आप कुटेनियस देखें ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू। जी सर अगर पेम्फिगस का पेशेंट जिसको इरोजन्स बहुत ज्यादा है तो उसका हम बीपी कफ लगाने से पहले कोई गॉज लगाएंगे या फिर? देखिए बीपी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि इरोजन्स बहुत ज्यादा हैं, आप एक बड़ा जो, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम करते, दिस इज आई एम वेरी क्लियर एज एग्जामिनर एंड एज सुपरवाइजर, हमारे कैंडिडेट्स या रेजिडेंट्स दे आर नॉट ट्यून टू, क्योंकि चीजें लिखी होती हैं, सोराइसिस का सोराइसिस है, तो ना तो वो जो है ना पैल्पेशन परकशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग करते हैं, ना बीपी और ये चीजें कर रहे होते हैं, आप ये नहीं करते हैं। आखिरी दिनों में जब आप पास कर लेते हैं तो आप कर रहे होते हैं।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पेशेंट एग्जामिनर कर रहे होते हैं तो आप उसको फेस को देखें, ये ना हो कि उसको पेन हो रहा हो और आपको पता ही ना लगे। अगर उसको इरोजन ज्यादा है, यू मेक हिम कंफर्टेबल, उससे बाकायदा पूछ लें कि जी मैं ये लगाता हूँ। अगर आपको लगे कि हो रहा है, यू आस्क एग्जामिनर की जी मैं ये करने लगा हूं, मैं ये इसको कर दूं या ना। बहुत ज्यादा इरोजन्स हो, बड़ा तकलीफ में हो, तो मे बी आपको जो है ना वो एग्जामिनर कहे कि ना करें, लीव इट, सही है, या लीव इट एज सच। डेफिनेटली एज मच पॉसिबल पेशेंट को कंफर्टेबल आप कर सकती हो, आपने करना है। ठीक है। और सर इस केस में थर्मोमीटर भी उसके ओरल कैविटी में रख सकते हैं अगर एक्सला के बजाय? नहीं किया है, और जो है ना ये होना चाहिए कि जो है ना थर्मोमीटर जो है ना यूज ना हो, ये देखें जो है ना साफ सुथरा हो। तो अगर उसको जिस्म पे इतने हैं तो ओरल में भी होंगे, मेरा ख्याल में उसको एक्सिला में रख दें तो बेहतर ही है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? So if there are no more questions, thank you very much for listening. Wish you best of the luck. Remember one thing, practice, नई चीजों पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। वही और अपना जो है ना बैग रखें, उसमें वही सामान रखें जो आप फाइनल डे पे लेके जाएंगे। एंड ड्यूरिंग बिफोर योर एग्जामिनेशन, आप जब तक वाइवा में नहीं जाते हैं, ट्राई एक तो अपने पास सीक्वेंस बना ले कि जी मैंने किस सीक्वेंस में क्या काम करना है। सही है जी। आप जो है ना इट डजंट मैटर कि जो है ना आपने पहले जो है ना कोई लेग से स्टार्ट कर लिया और आप फिर ऊपर तरफ आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि जी आपने एक दफा बैक देख ली और फिर जो है ना पेशेंट को लिटा के आपने जो है ना लेटा हुआ पेशेंट है उसका आपने लिवर वगैरह नहीं देखे, बल्कि आपको बीच में से फिर याद आता है और फिर आप पेशेंट को कहते हैं कि लेट जाएं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो सीक्वेंस आपका ठीक होना चाहिए। very important, your history taking should not exceed more than 7 minutes. That is the clue to your success, right जी? तो हिस्ट्री टेकिंग के सवाल बड़े रेलेवेंट वो सारे हैं, उनको जो है ना आप जो है ना अपने पास घड़ी रख लें, और जो है ना आप तो आजकल फोन्स आते हैं, 2-2 3-3 लोग जब आप कर रहे होते हैं, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें एंड देन लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो कि आप उसमें कैसे हैं, आप अपने आप को अच्छी तरह जज कर सकेंगे। सही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 25 मिनट्स में टोटल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग कंप्लीट करें, एंड विद इन 7 मिनट्स हिस्ट्री टेकिंग आपकी कंप्लीट हो। इफ यू आर एक्सीडिंग 7 मिनट्स, स्टार्ट विद योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम।